the UK, and because as part of the jury member for this advertising show, we had to also speak to this very large student audience as part of the show. So one of the days they hired this huge concert hall and for our talk. And we all got there and we had our separate presentations. हम सबके अलग-अलग presentations थे. तो वहाँ पे same चीज हुई. कोई technical glitch हुआ and the talk got extended आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा. And student population, थोड़ा restlessness आया, थोड़ा फिर लोग बाग, उबासी लेने लगे. People started yawning. 1-2 लोग कुछ सोने लगे. तो audience organizers ने कहा कि अच्छा ये तो concert hall है. So आप लोग you can all go out and outside there are vending machines for beer and it's free. Yeah. So sure enough, students went out, students and even young professionals who were there. Everybody went out and lots of other people were there. And उसके बाद glitch was all sorted out और 15 minutes में everybody came back. Now in the process, my UK guy told me कि let's also have some beer. Yeah. तो हम भी बाहर गए. और हमने भी थोड़ी पी ली. Although I was telling him कि यार प्रेजेंट करना है मुझे. तो पी के हम अंदर आए थोड़ी बहुत पिया और उसके बाद प्रेजेंटेशन शुरू हुआ. तो मेरे से जो पहले थी वो थाईलैंड की एक क्रिएटिव डायरेक्टर, तो उन्होंने जो है फटाफट प्रेजेंटेशन अपना खत्म कर फोकस करो उसको. एंड उसके बाद सडनली मेरा नाम बुलाया गया. आज प्रेजेंटिंग सोनाल रबराल फ्रॉम मलेशिया. या तो मैं ऊपर पहुंचा अपना लैपटॉप लेके और मैंने जो लैपटॉप खोला और सामने मैंने देखा तो सारी मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दी. टाइप का और ऐसे बोर्ड टाइप के लोग फोकसिंग पे और मैंने कहा बीच में बाकी मैक्सिमम नहीं. तो पूरा मैं तो एकदम ब्लैंक आउट हो गया. थोड़ी सी वो बियर भी थी. तो मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर मैंने लैपटॉप बंद किया और मैंने 2 कदम आगे लिए. मैंने कहा डू यू नो बॉलीवुड? So Taiwan, but Bollywood and some people had obviously heard. So a little bit of murmur was there. Yes. Then I said, I was supposed to talk about branding, but let me talk to you about branding in terms of Indian film stars. तो जैसे brands की equity होती है हर brand की, कि कोई serious brand है, कोई light brand है, कोई stylish brand है. हमारे Bollywood heroes की भी branding है. कोई अपना कंधा use करता है गाते हुए. कोई अपने nostrils use करता है, कोई eyebrows use करता है. Then I said, have you heard of Shah Rukh Khan? So everybody said, yeah. Few people said. So I said, let me sing you a song of Shah Rukh Khan. Would you like to listen to it? Because I wanted them to, at least wake up. So the moment I say, let me sing you a song, because it was a concert hall, the lighting engineer there was programmed almost. He shut off all the lights and he put a spotlight on me. And तो spotlight जैसे that I said मैं तो फंस गया यार, तो गाना पड़ेगा. So I sang a song. वो पूरा उनको बता के कि ये brand equity है, शाहरुख की, watch the shoulders, watch the eyebrows, And वो मैंने गाना गाया उनको. दूसरे दिन newspaper पे there was an article on the presentation of everybody. And they said there was also a Bollywood presentation made there. So while they talked about everybody's work, they were talking about my song, So that was a bit of a problem. So I thought what I'll do is to wake you up, let me sing you those 2 lines that I sang to them. Yeah? Sure, sir. Now, watch the eyebrows carefully, watch the shoulders. Yeah? Focus. Zoom. तुम पास आए, वाह यो मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए. अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ होता है. वाह, क्या करूं हाय, कुछ होता है. Thank you. Let's go again. Hi everybody. As I said, I'm Sonal Dabral, and what I'll do is I'll take you through my short journey because I've wasted a lot of time with my Mac, right? But
as I said, some lessons that I've learned in my life, and I was born and brought up not born and brought up, but most of my schooling life, जो वो गुजरी, वो आगरा में गुजरी. And everybody says that Agra is this, right? आप लोग सबको पूरी दुनिया को आगरा इससे पता लगता है. But Agra actually is this, जैसा आप लोग I'm sure you would know also, crowded streets and all that. But जो आज मैं advertising में use करता हूँ, सारी जो knowledge that came from these streets. So first lesson is that all of you who would like to have a career, whether it's in journalism or anything to do with mass media का मतलब है that you are communicating to masses. उसके लिए have curiosity, have this passion for observation of human behavior. कि हम लोग कैसे बात करते हैं, रिश्ते कैसे होते हैं, what makes us laugh, what makes us cry. ये सब चीजें बहुत बहुत जरूरी है. तो that's why I thought I'll share this picture with you कि कहाँ से most of my knowledge has come and continues to come by observing insights around people's behavior. उसके बाद as I said मैं थोड़ा National Institute of Design में गया. Anyway, National Institute of Design में जब जा रहा था, we had given उन दिनों फ्लाइट्स तो बहुत ही कम होती थी, किसके पास पैसे थे उतने खरीदने के लिए, और ट्रेन का रिजर्वेशन कराने का भी टाइम नहीं मिला था. मतलब इतना कम टाइम मिला था. और ट्रेन रिजर्वेशन भी, अब जो यहाँ पे बड़े लोग हैं मेरी एज के, उन्हें पता होगा कि ट्रेन रिजर्वेशन आल्सो वाज सो डिफिकल्ट टू डू. तो मुझे याद है कि मेरी पहली यात्रा आगरा से बाहर हैपेंड लाइक दिस, कि मतलब पूरा का पूरा आगरा लगता था मुझे छोड़ने के लिए आया है. सबके सब एक डिब्बे के अंदर घुसे हुए थे, और मैंने 45 घंटे की जर्नी फ्रॉम आगरा टू अहमदाबाद वो एक लगेज रैक के ऊपर गुजारी. और जब मैं उतरा पालड़ी में, तो मुझे जिंदगी का पहला लेसन मिला कि जिंदगी में कोई आपके लिए सीट रिजर्व नहीं रखेगा. आपको जैसी भी छोटी जगह है उस पे लेके गुजारा करना पड़ेगा, और वहीं से इतनी नॉलेज गैदर करिए कि आपकी सीट, आपका जो विस्तार है, आपका जो इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ता जाए और दुनिया में समझ आए. तो छोटी सी जगह थी. तो ये मेरा पहला लेसन था. उसके बाद पहले मैं दिल्ली में था, उसके बाद मुंबई आया. तो मुंबई में जो है मेरी पहली सो टू से नॉन फिल्म जैसे बोलते हैं, एड फिल्म, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज फॉर Cadbury's Dairy Milk, and this is a very famous commercial of that time. And इसकी छोटी सी स्टोरी ये है कि till this commercial came in 1994, chocolate in India was only advertised to children. It was only meant for children. और बड़े लोग उसे खरीदने से शर्माते थे. तो ये एड जो किया गया, इसमें ये बताया गया कि शर्माना कैसा. Your heart wants to do things that you want to do. Do not worry about what people say. Just go out and do it, because that is the real taste of life. So this is the message this film was giving. And this one single commercial, and it also tells you the power of communication. This one single commercial changed the whole fortunes of this chocolate company of Cadbury's. And it changed the whole direction of how chocolate advertising was to happen after that. So there is chocolate advertising before this commercial and chocolate advertising after this commercial. So, शॉर्ट मुझे यूट्यूब को चाहिए. इसकी मैं आपको एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ. तो क्या हुआ कि हम 6-7 बजे, इसका पहला शॉट जो है गोल्डन आवर जैसे बोलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉट होता है फिल्म का, अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो, there's a golden hour जहाँ की जबकि सूरज is at a certain point in time, because that light is perfect for shooting faces and shooting
क्योंकि वो नेचुरल सो टू से डिफ्यूजर बन जाता है स्काई। तो उसमें एक इसका जो लड़की का डांस करते हुए आने का वाइट शॉट जो आपने देखा, दैट वाज बीइंग शॉट एज द शॉट एट दैट टाइम। तो वो लड़की डांस करते हुए आई और मैं डायरेक्टर के पास खड़ा हुआ था, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि अगर सफेद doves, white pigeons are there as she comes dancing and they fly in slow motion, the point of freedom will be made so much more. तो डायरेक्टर बोला कि यार अभी 6:30 बजे 7 बजे कबूतर कहाँ से आएंगे? तो anyway he liked the idea and he stopped the shoot. He stopped the shoot for half an hour and pigeons were asked for because it's Bollywood, pigeons are available. तो somehow pigeons were arranged. अब pigeons हैं वहाँ पे और director says action and this girl comes dancing and pigeons are going instead of what there was there in my mind, क्योंकि वो Bollywood pigeons हैं and they are not supposed to fly. So but I'm sure you saw those pigeons beautifully flying, right? Take a look now and just watch the pigeons this time. You know that वो जो 1.5 फुट उछल रहा था pigeon, one of the pigeons actually jumped 1.5 foot. वो इसलिए उछल रहा था because it was my job to shoo the pigeons. Come on, shoo from the side. Anyway, the lesson here is that Cadbury's Dairy Milk, which were the leaders at the time, they took the decision कि बच्चों को ही नहीं, we should target the chocolates to adults also. So leaders always have to lead from the front, you know, as the saying goes. So this was a little lesson that I कह रहे थे कि यार क्या है तो जोक है, ये क्या कमर्शियल है, ऐसा कैसे हो सकता है, right? But the client was like, client really was obviously respected Piyush and the teams, and he said, yeah, he just go ahead with it. And the lesson here is that ideas होते हैं ना हमारे पास कई बार ये बहुत ही fragile होते हैं। कोई भी आइडिया, कल को तुम्हारे पास स्टार्टअप का आइडिया होगा, किसी भी चीज का आइडिया या कुछ करने का आइडिया कि मैं ना फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ या मैं राइटर बनना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ के, और लोग बात कहेंगे कि क्या कर रहे हो यार, यू नो पैसे कैसे कमाओगे, ये कैसे करोगे, वो कैसे करोगे, स्टार्टअप कैसे करोगे, ये कैसे, बहुत सारे नेसेयर्स आपको मिलेंगे। पर वो जो आइडियाज, जो फ्रेजाइल आइडियाज होते हैं ना, इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू हैव टू नर्चर इट। हर आइडिया छोटा शुरू होता है, कोई बड़ा आइडिया नहीं होता है। पीपल टॉक ऑफ बिग आइडियाज ना, कोई बड़ा आइडिया नहीं होता है। सारे आइडियाज टेक बर्थ एज टाइनी फ्रेजाइल आइडियाज that have to be nurtured, that have to be protected, that have to be fed with imagination, fed with sharing, और वो छोटे छोटे आइडिया फिर बड़े होते जाते हैं। So that's the lesson that I learned from this commercial. And then I did a bit of work on 4G and let me not show you, it'll take time. Then I was I did a few television shows like Philips Top 10, Anchor 8 Minute. So while working in advertising, Yes, I also did 4G. I was also doing television shows. And it's just to tell you that जो भी आप काम कर रहे हो, have a passion outside it. It always benefits you. Have something outside that you like doing. Whether it's wildlife photography, whether it's music, whether it's picking up an instrument, whatever you are doing, have something outside it also. So that's a little lesson out of this. very good. Where do I go next? Let me skip this commercial. Okay. Anyway, then I was told to go to Malaysia, and I said, I'm very, very comfortable right now in Bombay. Should I go to Malaysia? Ogilvy Malaysia में मुझे भेजा जा रहा था to build the office there. तब मैं Ogilvy Bombay में था. Yes, And then I said कि यार हाँ, one shouldn't be too comfortable, so let's go to Malaysia. Yes. So Malaysia में I helped build the office there, hired new people, and we finally started doing really well. And in 2 years' time, we became Malaysia's #1 office. Then we became one of the best in Asia. And then Ogilvy Malaysia became part of the top 15 offices of Ogilvy in the world in 3 years. So which was another great, great piece of satisfaction for me. One left a comfortable job to become uncomfortable again, right? And just to explore newer frontiers, newer people, newer culture. So what I'm going to show you is one commercial from Malaysia, and this was for
in Malaysia they were doing a Malaysian Creative Circle Awards. So these awards ये केवल creative agencies के लिए थे. जैसे इंडिया में भी होते हैं एबीज या कैन लायंस या क्लियो अवार्ड्स, दे वर ओनली मेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज. तो जो हमारी टारगेट ऑडियंस थी वाज द क्रिएटिव डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस एजेंसीज. That means that you can get a little creative. Now, one of the things in Malaysia was, and it's everywhere. Everywhere, there are certain laws that govern the media. कि आप फिल्मों में ये दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते. जैसे इंडिया में you can't show smoking in an ad, which is right also in a way. और तो मलेशिया में the rules were tougher क्योंकि वहाँ things like gun नहीं दिखा सकते, robbery नहीं दिखा सकते. There are some other rules were stricter. So the idea that I wrote the commercial on was that in Malaysia the rules are tougher, therefore creative directors have to work harder and have to be more creative. That became the so to say the insight on which the whole campaign was written. So I want to show one film for that. So take a look. One more commercial I want to share with you from Malaysia, and it's got another lesson. तो मलेशिया जैसे जैसे इंडिया है, मलेशिया भी काफी गरम जगह है. I mean not Dehradun, but let's say I'm talking of Delhi about. तो मलेशिया में काफी गर्मी हो सकती है, तो आफ्टरनून वगैरह में. तो there was one day मैं और मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर पार्टनर we were going for a meeting, and the meeting was supposed to be a very tough meeting. उस मीटिंग में हम लोगों को गालियां पड़ने वाली थी, right, from the client, because some work had not gone well, and I was almost sure that the client has called to sack us, yeah, to tell us that we are not giving you the business anymore. So मैं as it is very tense था because I was heading the creative for the agency. तो मैं अपने मैनेजिंग डायरेक्टर पार्टनर की गाड़ी में था, and we were heading for the meeting. तो मैंने, and I used to smoke a lot at that time. तो मैंने अपना सिगरेट का पैकेट निकाला, and I was about to light when this managing director partner looks at me and goes, no, new car, brand new car, cannot do that, cannot. Sorry, you cannot spoil my car. So I said, yeah, sorry. So I put the cigarette back, and it was his brand new car, smell of leather and all that, absolute brand new car. But ठीक है. And then he saw me getting very itchy, yeah, restless. So then he suddenly put off the air conditioner and he rolled down the windows and he said, "Okay, let me be nice to you. You can smoke." So I said, "Thank you." I took out my cigarette pack and I started smoking. And my mind, as I was smoking, was not on the meeting, because in my mind I was thinking, why should somebody be nice to smokers? I am spoiling his brand new car. I am polluting the environment. There is already secondhand smoking, yeah. And he's still being nice to me. Why should people be nice to smokers? So I kept thinking about it. When we landed at the client's office, by that time I had this answer to it, and that answer to it became. I immediately wrote this television commercial, which we shot in India, and it ran in India. And it was an anti-smoking commercial, and it gives you the answer why people should be nice to smokers. So on that basis I wrote this commercial, and when this commercial ran in India, it was quite liked and doctors gave interviews and all, because it won the Grand Prix at the. The lesson here is that if you are a creative person, you have to keep the windows of your mind always open. क्योंकि आइडियाज जो है तब तो फ्लोट करते रहते हैं. Yes sir. इन terms of what happens in our lives, उसमें कुछ आइडिया होता है, कुछ आपने देखा उसमें कुछ आइडिया होता है. तो if you are an ideas person या कोई भी creative person, journalism, anything creative, writing, whatever you pursue later in life, keep the windows of your mind always open. Don't. And as a person also, don't be a shut person. For a creative person, should be an open person, open to experiences. Open to sadness, open to happiness, open to laughter, open to crying sometimes also, because all these experiences, what gives you ideas, what gives you stories. Let me see what else you have. So after Malaysia, I went to Ogilvy, Singapore, and in Ogilvy, Singapore, we became really, really known for our creative work.
the 10 Lions, which is the most prestigious award show in the world for advertising. We were the number 3 most awarded agency in the world. So that was very good in 2007. But thank you so much. From Singapore days, a couple of commercials that stand out, couple of ads which I thought I'd share with you. One ad that we did was to launch Coca-Cola, Coke side of life. Coca-Cola was talking about positivity, about being positive in life. So, us positivity ko leke, we wrote a commercial which was about a height challenged person. A person who is height challenged. The story was that person. It was about that person. And there was one more commercial that we were shooting, which was a very big commercial, and that commercial we were shooting for Coca-Cola in Amsterdam. तो उसके साथ साथ हमने डिसाइड किया कि छोटा कमर्शियल भी वहीं शूट कर देंगे, सेम डायरेक्टर. तो इस कमर्शियल का जो हीरो है, is actually in real life he's height challenged, and that hero, his name is Kiran Desai. He's based out of London. And he acts as, because he's really height challenged, he acts as the stunt double for children in Hollywood films. And films like Narnia, Willy Wonka and the Chocolate Factory. He's the person who's played Oompa Loompa in Willy Wonka and Chocolate Factory. So very celebrated, so to say, stunt double or celebrated height challenge actor. तो हम लोग एम्स्टरडैम में होटल के लाउंज में बैठे हुए थे, हम और डायरेक्टर, एजेंसी मैं था, डायरेक्टर थे, उनकी प्रोडक्शन टीम थी, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कल क्या क्या शूट करना है. और ये जो हमारे हाइट चैलेंज पर्सन है किरण देसाई, ये इंग्लैंड से आने वाले थे, एंड उनको बोल रखा था कि जब वो आए तो उनका आप लाउंज में ही लेके आ जाएं, बाहर में ही लेके आ जाएं, तो फिर हम वी कैन टॉक टू. तो हम लोग बैठ के करीब 6-6:30 बजे थे शाम के, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं. जनरली व्हाट हैपेंस इन अ बार, ना, देयर आर पीपल जनरली सिटिंग ऑन अदर टेबल्स, सम पीपल आर on the counter area, bar counter, and chit chat going on, certain buzz happening. And suddenly there was a hushed silence that happened in the bar at around 6:37. So I turned to look, ye kya hua? And then I saw that the usher was getting Kiran Desai, ushering in Kiran Desai, and the entire bar was looking at him because Kiran Desai was wearing a leather jacket. He was wearing boots, jeans, and he was walking like that. Hey man, how are you? And he's like patting that usher on the back, right? And he's walking with this flair style. And then he comes and sits on a table, and he starts chatting. Hi buddy, hi. So, hey, lovely meeting you, boy. Lovely meeting you, man. And then he started telling us stories about, Narnia, this happened. Oh my God, I fell down, man, and that, blah, 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 blah. And I'm not joking. Within 5 minutes, he owned the entire meeting, Everybody listening to him, laughing with him, and he's telling stories and he's telling jokes. And in between the conversation, I looked at him and I said, my God, he is right now living the commercial that I've written, which is, you could not make out looking at him that he's height challenged, and so height challenged. He was at that point in time 6 feet tall, in his demeanor. Wow. He was confident. He was like, and everybody was eating out of his palm in terms of listening to his story, and fully confident about his work, about what he's achieved in life, and sharing his stories. So this is what the real story that I wanted to share before showing you the. I'll just take maybe 5-7 minutes more. Sure, right? sir. Because it's lovely. Just want to share you one more story. Yes, sir. And because this commercial is very close to my heart. Sure, sir. हम लोग McDowell's number 1 के लिए ये कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे, and I was heading DDP Mudra that time. और बैंगलोर ऑफिस था जो हमारा, वहां से ये कैंपेन होनी थी McDowell's number. तो हमारी पूरी कैंपेन तैयार थी on friendship. The campaign was on friendship. And तो मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पे मैंने कहा फ्रेंडशिप क्या होती है. फ्रेंडशिप जब आप लोग ना जब ग्रेजुएट करोगे, राइट, तो जो दुख होगा ना अपने दोस्तों को छोड़ने का कि उसके बाद कब मिलेंगे, तो आप लोग वीडियोस बनाओगे. तो वीडियोस, फेयरवेल वीडियोस जो होते हैं ना, फेयरवेल वीडियोस मैं वो देख रहा था यूट्यूब पे. क्योंकि फेयरवेल वीडियोस जो होते हैं, वो जिस टाइम पे बनते हैं, इज अ वेरी इमोशनल टाइम फॉर फ्रेंडशिप.
वहां पे फ्रेंडशिप पूरी निकल के आती सब। तो फ्रेंडशिप जो मैं वीडियोस देख रहा था उनमें सारे के सारे साउंड ट्रैक्स वर फ्रॉम दिस के सॉन्ग, यारों दोस्ती बड़ी हसीन है, लवली सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग। Yes. बट मोस्ट फेयरवेल वीडियोस का जो साउंड ट्रैक था वाज दिस के सॉन्ग। तो मैं फ्लाइट पे आई वेंट टू बैंगलोर, आई वाज लुकिंग एट द कैंपेन दैट वी हैड प्रोड्यूस्ड व्हिच आई वाज प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट डे, एंड आई सडनली थॉट व्हाई शुड इट बी अ कैंपेन, व्हाई शुड इट बी अ एड कैंपेन, we should write the next anthem of friendship for McDonald's number one. Yes. Instead of doing ads on friendship, we should write a song on friendship, जो कि अगले 3-4-5 साल बाद लोग बाग अपने फेयरवेल वीडियोस में यूज करें। Imagine using a brand song into your real videos. तो मैंने वो कैंपेन को रखा और फिर मैं बैठा, and in the next 2 hours I just sat and went back to my childhood friendship and all that, and I wrote this song. ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, हर आसमां से ऊंची है, समंदरों से गहरी, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है, छांव में धूप में जाने कितने रूप में, ये तपी है ये पली है, सोना बन के ये मिली, गलियों से गुजरी है, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है। So I wrote that song, presented to the client loved it, and we recorded that song. So that song became a big hit, the film became a big hit, and उसकी जो next Bali film थी is the film that I then wrote, and I directed that film also. So I thought I'll share that film with you. Sure. And sure enough, अब मैं जब I went to YouTube sometimes and see some farewell videos, and I realized that this song that I'd like to share with you is that fast headed, जितना काम करना पड़े उसके लिए जितना हार्ड वर्क करना पड़े। So after 30 years of agency life, my last role was I was chief creative officer for Ogilvy Southeast Asia, looking after Singapore, Vietnam, Thailand, and India, and some of these places. Yes. And on one meeting from and direction had been, it used to be my passion. तो ये मैंने फिल्म डायरेक्ट की थी, ये नंबर 1 यारी, Wow. और इसको भी डायरेक्ट किए हुए 3-4 साल हो गए थे। Yes. तो जब मैं एक मीटिंग के बाद सिंगापुर में Yes. गाड़ी लेके अपने होटल वापस जा रहा था, तो रात का टाइम था, वी हैड अ ग्रेट मीटिंग, उसके बाद हम बाहर भी गए थे, डिनर किया था, और मैं गाड़ी में सोच रहा था कि यार क्या बढ़िया जॉब है, कितनी आई फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने टीम्स के साथ काम करता हूँ, थाईलैंड टीम के साथ काम कर रहा हूँ, मलेशिया टीम के साथ, इतने अच्छे आइडियाज हो रहे हैं, सब लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। एंड देन आई गॉट इनटू द होटल एंड देन आई सेड, पर यार यही करता रह जाऊंगा, जो मैं फिल्म डायरेक्ट कर दी है ना वो कभी नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद जब मैं इंडिया आया, आई डिसाइडेड कि एजेंसी लाइफ तो कर ली बहुत, अभी एजेंसी छोड़ के एक फिल्म डायरेक्ट करते हैं, फीचर फिल्म। तो आई क्विट एजेंसी लाइफ टू फॉलो दिस पैशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, एंड जैसे ही मैंने छोड़ा, एन ऑफर केम टू डायरेक्ट डिम्पल जी फॉर अ फीचर फिल्म। So I've just finished directing my first feature film, and it's produced by Applause. It's based on a story by Twinkle Khanna from her book The Legend of Lakshmi Prasad. The story is called Salam Noni Appa, and in the lead are Dimple Kapadia and Manav Kaur. Wow. And it's a sweet, mature love story. So when it comes, see it, and you better like it. Sure. Even if you don't like it, say you do, and follow your passion. And my last question to you, what would you like to be in life? Yeah? Let me see. An egg? A carrot? Or coffee bean? Huh? Coffee bean, of course, everybody's saying coffee bean. So the thing behind it is that an anda and a gajar and a coffee bean, when life puts you through adversity, tough times, when there are happy times, it's fine, we do all well. Yes. But when life puts you through adversity, through really tough times, that's when your real character comes out. Your real character. तो अगर आप उबले पानी को adversity समझें और उसमें गाजर डालें, तो गाजर is pride itself to be very tough and very nice looking, tough. You put a gajar in boiling water and it turns out to be limp and soft. Then you have an egg, which is very brittle, fragile. You put it in boiling water, and it goes to the other extreme. Instead of remaining sensitive and fragile,
it becomes hard from inside. It becomes like cold and hard. You know. And you put a coffee bean into boiling water. What does coffee bean do? It spreads its aroma. It spreads its fragrance. One little coffee bean, you know, which is really bad to look at also. You put it in boiling water and it turns this boiling water it influences with its aroma, and turns that into beautiful coffee. So, of course, when you said coffee bean, may all of you be coffee beans in your life and life to come. And as I said, may you all shine brighter and brighter and brighter in the coming years. Thank you very much. Interesting. So I request you once again, please put your hands together and give him a huge round back in time. And we could actually, you know, remember our time, especially the Cadbury ad. Like, thank you for coming. And I take this opportunity on behalf of Devbhoomi Uttarakhand University to thank you for being here. And I hope that students, they will take inspiration from you and, you know, really follow their passion. So thanks once again. Now again, as you see that we have, three more guests with us. And next, I would like to invite Mr. Deepak Dwivedi, Sir, owner of Blitz Mass Media, to please come forward and say a few words to our students. Please welcome him again. पूरा एक ही उस पे करना देता हूँ. अच्छा सुनो. Good morning, all faculty members, Good morning, sir. dear friends. Very good morning, sir. बहुत आपने अच्छा अभी लेक्चर इंस्पायरिंग सुना हमारे डबराल साहब से. अब थोड़ी सी यात्रा जब एक फिल्म इंडस्ट्री की और मोटिवेशनल मूवीज की, मैं भी आप जैसी एक यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स था. बीएससी से एमएससी तक की पढ़ाई वहां पे की. एमएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद बोर्ड मेडल की परीक्षा पास की. उसके बाद वहां पर लेक्चरर हुआ. लेकिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की ही एडवाइस से मैंने अपना कैरियर जर्नलिज्म में शिफ्ट करने के जब बाद कोई भी आप सारे लोग हॉस्टल में रहते हैं, डे स्कॉलर्स थे, हम लोगों को सबको साथ मिलने का मौका मिलता है. हर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटीज, आईएम सब में पढ़ने वालों का एक ख्वाहिश रहती है कि हम देश में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आईएएस बने. मैं भी उनमें से, सबकी ख्वाहिश होती है, आज की तारीख में होनी चाहिए. लेकिन हम लोग की जानकारी से होती है कि देश की सबसे बड़ी नौकरी आईएएस होती है. जब हम लोग सोचते थे, विचार करते थे हॉस्टल में, क्योंकि मैं पहले से लिखता पढ़ता था कि आईएएस तो शुरू से आखिरी तक दिन तक सबको सर ही बोलता है. जब वो आईएएस का एग्जाम पास करके ट्रेनिंग करके जाता तो सबसे पहले उसकी पोस्टिंग ऐसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होती है. तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सर बोलता है. जब वो डीएम हो जाता है तो कमिश्नर को सर बोलता है. जब सेक्रेटरी हो जाता है तो चीफ सेक्रेटरी को सर बोलता है. चीफ सेक्रेटरी हो जाता है तो चीफ मिनिस्टर को सर बोलता है. दिल्ली में आता है तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी को सर बोलता है, अपने मिनिस्टर को सर बोलता है. और जब सबसे बड़ी देश की पोस्ट आईएएस होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी, यस, वो प्राइम मिनिस्टर को सर बोलता है. तो उसकी जिंदगी में पहला दिन से आखिरी तक तुमने सर की नौकरी छोड़ के हम लोग कोई और चीज करें. उसमें जर्नलिज्म का इंपॉर्टेंस भी था, उसका महत्व भी था.
लोग सिखाने वाले थे। तो जिन प्रोफेसर ने मुझको अपॉइंट किया था एज ए लेक्चरर, उन्होंने मुझसे कहा कि यूनिवर्सिटी की बाउंड्री छोटी है, कैंपस यूनिवर्सिटी का, कैंपस से बाहर, इसमें यूनिवर्सिटी में आओगे तो लेक्चरर बनोगे, एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, वाइस चांसलर बनोगे, लाइफ है, उससे आगे जाओ। तो मैंने डिसीजन लिया और मैं लिखता पढ़ता था ब्लिट्स अखबार में। उस समय ब्लिट्स देश का सबसे बड़ा अखबार था और उसके एडिटर इन चीफ रूसी करंजिया, आर के करंजिया होते थे। तो मैंने उनको बताया कि सर मैं आना चाहता हूँ, मैं लखनऊ में ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ यहाँ। तो मैंने वो लखनऊ को छोड़ के बॉम्बे जाने का फैसला किया। अब आज आप लोगों के भी बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके बॉम्बे में जानने वाले नहीं, दिल्ली में जानने वाले नहीं। मेरा भी कोई बॉम्बे में जाने वाला नहीं था। तो आप कहीं जाएंगे यात्रा करके तो रुकेंगे कहाँ? और हम लोग के ऐसे, हम लोग मध्य परिवार से आए हैं, मेरे फादर एक टीचर रहे। तो जब बॉम्बे जाने की तैयारी में ट्रेन पर पुष्पक एक्सप्रेस चलती थी लखनऊ से, उससे जब सुबह वो भोपाल पहुंची तो मैंने ये पता लगाया कि ये बॉम्बे किस टाइम पहुंची। तो पता चला रात को करीब 11 से 12 बजे। उस समय रिटायर की यात्रा थी, कोई ऐसा भी नहीं था। लेकिन उतरने के बाद तो मेरे मन में आया कि यहाँ बुक स्टॉल से 8.5-10 अखबार खरीद ले तो उसको बिछा के लेटने का इंतजाम हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने अखबार खरीदे, जितने भी अखबार थे, और उसका मेरा एक अप्रोच ये था कि उसको जमीन पे बिछा 11 बजे रात को 12 बजे पहुंचे कहाँ पे जाए। तो आपने पहुंचा, उसको स्टेशन पे अखबार बिछाए तो कम से कम और कोई साधन नहीं था बिछाने का, चादर या बेडशीट ऐसा विजन भी नहीं था, और उतना लोग सोचते भी नहीं थे और संपन्न। रात को 12-1 बजे ट्रेन लेट पहुंची। वहां पर जो सोच के अखबार लिए थे बिछा के रात की गाड़ी सुबह गए। सुबह खैर नौकरी ब्लिट्स की ज्वाइन की। तो सबसे पहला सवाल ये आया कि आप रहोगे। उस समय के चीफ एडिटर या आप कह लीजिए आज के प्रोफेसर, वाइस चांसलर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, व्हाटएवर द पोजीशन होल्डर, उन्होंने, जब मैंने कहा कि सर मेरे पास तो यहाँ रहने का तो कुछ है, लेकिन फिर वही चीज थी। जब मैं सुबह 8 बजे ऑफिस पहुंच गया, सबके आने का समय 11 बजे था। अखबार में लोग 11 बजे के बाद ही आते हैं। तब तक मैंने वहां भी ये देखा कि अगर कुछ नहीं होगा तो यहाँ के रिसेप्शन पे लेटने का इंतजाम बन सकता, क्योंकि मैं केवल एक ही उद्देश्य से गया था कि मुझको अच्छा जाने। तो उन्होंने बहुत सम्मान से, जो एक चीफ एडिटर का होता है, अपने किसी रिपोर्टर के बाहर से, उसको बहुत कुछ सीखने को मिला। बाद में उन्होंने कहा कि कहाँ रिपोर्टर, मैंने उनको बहुत सहज भाव से, मैं अगर आप इजाजत दे देंगे तो शाम को जब ऑफिस खत्म हो जाएगा तो मैं यहीं पे सोफे पे सो जाऊं, सुबह उठ के फिर शुरू कर दूंगा। तो रूसी करंजियावाज, अगर आप लोग उनको गूगल में देखेंगे, उनका कैरेक्टर उस समय के लोगों का क्या होता था कि वो अपने किसी सबऑर्डिनेट को लोअर स्टैंडर्ड में देखना नहीं चाहते थे। ये सीनियर जर्नलिस्ट, he is a chief editor. That you will go as the representative of the blades, or staying on the reception. Not good. I will organize. उसके बाद उन्होंने मुझको बम्बई में जो सबसे साउथ बम्बई का सबसे महत्वपूर्ण इलाका होता था कोलाबा,
उन्होंने मुझको ऐसी जगह पे रुकने का 4 साल तक इंतजाम कराया जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। जहां पर ये लोग सोचते थे कि हम 5 स्टार होटल क्या होते हैं, उनके बाद मरीन ड्राइव की मॉर्निंग वॉक क्या होती है, ऐसे लोग सुबह टहलते हैं, ऐसे लोग उन होटलों में जाते हैं, 5 स्टार होटल क्या थे मुझे नहीं पता था, लेकिन एक अंदाज था। लेकिन वो सारी चीजें सीखने का मौका मिला। कहने का मेन आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूं कि आप जिस जंक्शन पे खड़े हैं, आपके सामने बहुत सारे दरवाजे हैं। आप देश के अच्छे लीडर बन सकते हैं इफ यू हैव द क्वालिफिकेशन एंड द लेबर, एंड आप आईएएस बन सकते हैं, कोई चीज नहीं है। आईएएस से बड़ी चीज जो आईएएस रिजाइन करके आज तारीख में और उसके लिए परेशान रहते हैं, दिस द यूनाइटेड नेशंस जो आई वर्क विद द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक उससे बड़ी संस्था है, एशियन डेवलपमेंट उससे बड़ी संस्था है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट उससे बड़ी संस्था है। जब आप इस जंक्शन पर रहेंगे और आपको सुबह से शाम तक आप एक ही खोज में रहेंगे कि मुझको देश का बड़ा आदमी बनना है। आप सब लोग जिन परिवारों से आए हैं, उन परिवारों में कोई सरकारी कर्मचारी, किसी के फादर हैं, किसी के टीचर हैं, किसी की बहुत सारे लोग, लेकिन आप जिस पद पर जाना चाहते हैं वो आपके फैमिली में बहुत कम लोग हो सकते हैं जो आपको इंस्पायर करें। उसके लिए आपको अंग्रेजी पढ़ने की बहुत जरूरत है। आप बीटेक में हो सकते हैं, बीई में हो सकते हैं, आप एमबीए में हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुकिश नॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी नॉलेज, जो क्लासरूम की नॉलेज है, वो तो छोटा सा एक आपका पार्ट है। एज अ ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, एवरीबडी विल एक्सपेक्ट यू। एक्सपेक्टेशन ये होगा कि आपको दुनिया की हर चीज के बारे में आपको जानकारी। इसीलिए जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं वो लोग हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब बहुत सारी लिटरेचर आ गया, तो आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आपको ये यू आर ओनली द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियर, तो यू शुड नो ओनली द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो जमाना चला। अब आपसे देश की इकोनॉमी क्या है, G20 क्या है, कॉमनवेल्थ क्या है, फाइनेंशियल देश का स्ट्रक्चर क्या है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का रास्ता क्या है, हमारे यहाँ पैकेजिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीज है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सब्जेक्ट से मेरा कोई लेना देना। अगर आपको बड़े डोमेन में अगर आपको जाना है, इसलिए रोज सुबह उठने से पहले ऑनलाइन न्यूज़पेपर देखिए, फिजिकल न्यूज़पेपर देखिए, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में क्या हो रहा है। तो कभी भी आप जाओगे तो आपको कोई सिलेक्टेड सिलेबस का सामना नहीं करना। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, रात को सोने से पहले ये देखते हैं कि कोई सुबह अगर टेलीफोन आ गया, किसी इशू पर किसी ने कोई जानकारी मांगी, तो मैं क्या करूंगा, उसको पता नहीं। अर्ली मॉर्निंग आप उठने के बाद आप फिर उसी रिहर्सल प्रोसेस में जाते हैं कि देश की इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, इंटरनेशनल न्यूज क्या है, इंडस्ट्री की न्यूज क्या है, फाइनेंस की न्यूज क्या है। तो आप किसी भी सेगमेंट में हो, आज आपको आगे बढ़ने के लिए, भले आपने बीए किया है, बीएससी किया है, मेडिकल किया है, एमबीए किया है, इंजीनियरिंग किया है, दैट इज इमेजिनेबल। आपको मॉर्निंग टू इवनिंग जो दुनिया में और सब जगह हो रहा है, आज की तारीख में जो इजराइल वर्सेस हमास के बीच जो एक युद्ध हुआ है, उसमें कितने देशों की इकोनॉमी डाउन है, उसमें यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल रहा है, कितनी मीटिंग्स यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में हुई हैं अगेंस्ट द रेजोल्यूशन अगेंस्ट द इजराइल, वो क्या रेजोल्यूशन। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं नक्सल में कि जो आपको डे टू डे आपको इन सारी चीजों पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं।
और अगर आप इस फॉर्मेट में कि पहले मैं बीटेक कर लूंगा, उसके बाद ही कोई ऐसा मौका आएगा कि हम इसकी तैयारी करेंगे, तो वो मौका जीवन में कभी आने वाला नहीं। द डे फर्स्ट आप अगर 15 से 16 घंटा ड्यूरेशन अपना नहीं रखेंगे, डॉक्यूमेंट्री देखिए, बहुत फीचर फिल्म देखिए, बहुत डेवलपमेंट फिल्म देखिए, बहुत जो न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इस इशू के ऊपर हाईलाइट किया जा रहा है, द गार्जियन में क्या किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स की वेबसाइट देखिए, चीफ मिनिस्टर्स की वेबसाइट देखिए, गवर्नमेंट के जो कैबिनेट डिसीजंस हैं उनको, ये सारी चीजें आपके लिए हैं और आपको इसके लिए कहीं पर आपको एक सिलेक्टेड सिलेबस बना हुआ आपको नहीं मिलेगा कि आप जाइए, ये अलग कोचिंग में भी जाएंगे, किसी भी कोचिंग में जाएंगे, वो सिर्फ आपको एक मॉडल बताएगा, उसके बाद तो बच्चे खुद पढ़ते हैं। आखिरी में थोड़ा सीरियस सेशन हो गया, आप लोग जरूर इस बात को अपने माइंड सेटअप में उसका एक फ्रेमवर्क बनाइए कि अगर आगे आपको बढ़ना है, उसके लिए खुद आपको तैयार करना और खुद उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आप अपने को किसी का कॉम्पिटिटर मत बनाइए। हम लोगों ने कितने सारे लोगों की यात्राएं पार की हैं, किसी को भी आज की तारीख में अपना बड़ा से बड़ा जर्नलिस्ट नहीं माना होगा। उसकी काबिलियत अपनी जगह है, आपकी काबिलियत आपकी जगह है, आपको अपना लिखना आता है, उसको अपना लिखना आता है। 1% आदमी का भाग्य काम करता है, कोई उसी तैयारी से आपको ऊपर पहुंचा देता है, कोई उस लेवल तक जाने से नीचे रखता है। तो लेकिन अगर आपकी काबिलियत है, कॉम्पिटेंसी है, आपकी कैपेबिलिटी है, नो वन कैन स्टॉप। Some lessons, and definitely I want them that they should go through the newspapers. We tell them every day in the classes that you should do that, but a lot of them do not do. Thank you once again, and may I request you all to put a hand together for owner of this mass media. It is also an honor for us that we have the next speaker for the day, Mr. Gaurav, who is a CA and CS, and his story is highly inspirational. So, sir, we would request you to share a few, points of your story for us. Well, first and foremost, it's been an honor to be here. I would like to extend my heartfelt wishes and thankfulness to the management of Devbhoomi University. आज जो गैदरिंग हमारी हुई है, we have spoken a lot about life and success stories, about life, careers and everything. And my profile is finance, and don't worry, I'm not going to bore you talking about finance. Let's talk about life. What I can tell you from my little experience that I have is when disparity came and when the toughest time came and the toughest battle of my life came, how I overcame it. And few things that have worked out for me in my life, like 6-7 years, my accident happened in 2018, and after that it's been 5 years of my accident and half of my body is totally paralyzed. So few things that have worked out for me and how I have managed to cope up from this situation. So I'm gonna share it with you guys. Okay, so I'll summarize it. We'll keep it short. Initially, when I went to Delhi University after my 12th examination, my purpose was not to go there and study, like literally. I wanted to go to Delhi University and get that exposure because I come from Pithoragarh and I think most of you are aware of the place. So I wanted to get that exposure. I wanted to learn things, and I always had ambitions. So I wanted to see and check where I stand in front of those guys. So that's how I started. I went to Delhi University. First 3 semesters, I was doing chemistry honors, by the way. I was a science student. And the 3 semesters that I was doing there, I was only exploring. I was traveling here, and my friends were wealthy. That was all luck. So I got to learn how they talk to people, how they're living, and what their thought process is. So first 3 semesters, of course, I was not that bad in studies, so I used to get passed. But in these 3 semesters, I only explored Delhi.
And then I realized after Delhi University, my career options were very limited because we never had that sort of guidance that is available today. So my elder brother was doing chartered accountancy, and I was living with him. And he used to come at home in the evening, and he used to talk about crores, balance sheets, and everything. So I thought, what interesting लग रहा है, क्या चीजें होती हैं. So then I checked out on internet, and then I decided that this is the real course, so I can also do it. Then my family said, साइंस का है बच्चा और कॉमर्स का इतना डिफिकल्ट कोर्स करने की कोशिश कर रहा है, so they all gave up on me. They said, घर आजा, नहीं हो पाएगा तुझसे. So I decided, sometime what I feel, one thing that I would like to share with you, that जिस रास्ते पे सभी लोग चल रहे होते हैं, उस रास्ते पे जो मंजिल होती है वो मतलब बहुत आसान होती है. The road less traveled जो हम बोलते हैं, उन रास्तों पे कभी कभार हमें जाना पड़ता है to reach at some place जो हमारे लिए बहुत अलग होगी. मतलब सीधे रास्ते से ना जाके आप कभी थोड़ा सा इधर उधर अगर रिस्क लेके अगर जाएंगे, तब आप एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं होता है हाउ इट वुड बी. तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, बच्चे रिस्क में होते हैं कि करियर में क्या करना है, कैसे करना है. तो अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो कोशिश करिएगा कि जो रोड लेस ट्रैवल्ड होती है, जिसपे भीड़ नहीं भाग रही है, उन रास्तों पे जाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उन रास्तों पे डेस्टिनेशन बहुत अच्छी होती है. ऑफ कोर्स जर्नी इज डिफिकल्ट, कोई रास्ता आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बट हम लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते पहले स्टेज पे कि एक डिफिकल्ट रास्ता ले या हमारा अगर कुछ थॉट प्रोसेस है करने का वो करें. सो वो हुआ. उसके बाद मेरे पास थे 3 महीने जिसमें मुझे 11th और 12th का कोर्स करना था कॉमर्स का, ऑफ कोर्स सीए का जो एंट्रेंस होता है. सो 3 महीने मैंने वो कर लिया. कॉलेज ऑब्वियसली डीयू में क्या होता था उस टाइम पे, आई डोंट नो व्हाट आर द रूल्स नाउ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है सो आई विल बी डिटेन. मुझे एग्जाम्स नहीं दिए, मतलब मुझे नहीं अलाउ किया जाएगा कि मैं एग्जाम्स दूं. तो 3 महीने में मैं कॉलेज भी जाऊं और ये सारा चीज भी करूं, दैट वाज नॉट पॉसिबल. तो मैंने घर पे नहीं बताया हुआ था कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं. तो चुपचाप मैंने अपनी तैयारी करी. कॉलेज में मैं डिटेन हो गया. तो अब मेरे सामने संकट था, अगर मैं घर में बता दूं कि मैं डिटेन हो गया हूं, मैं डिटेन हो गया हूं बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, घर वाले कहते बेटा एक ही काम था कॉलेज जाना, तूने वो भी नहीं करा. तो मैंने घर में बताया नहीं कि मैं डिटेन हो गया हूं. और मैंने उसके बाद अपना जब एंट्रेंस देने गया तो वहां पे जब मुझे बच्चे दिखे, तो अब मैं किसी को जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत नर्ड से बच्चे वहां पे थे. आई वाज अ लिटिल डिफरेंट पहले से ही. तो उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया कि तुमने ना कोचिंग की है, पहली बार ही आए हो एंट्रेंस देने, साइंस के हो, कैसे होगा क्या होगा. सो सीए एंट्रेंस तो होता क्या कि आपके 4 एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपको 40 हर सब्जेक्ट पे लेके आने होते हैं. एंड ओवरऑल आल्सो यू नीड टू गेट 50%. आपके 40 हैं, 50 नहीं है ओवरऑल, तब भी आप फेल हो जाओगे. तो इनिशियली मैं पेपर आते ही देखता था कि मेरे 40 हो रहे हैं, 100% या नहीं हो रहे. तो इस तरीके से मैंने चारों अपने पेपर दे दिए. उसके बाद मैं घर आ गया. घर आने के बाद मुझे पता नहीं था रिजल्ट कब आता है. तो भाई ने एक दिन फोन किया कि तुमने रिजल्ट नहीं बताया. मुझे पता ही नहीं था रिजल्ट आता कब है. तो उसने सीआरओ नंबर होता है इनिशियल हमारा, उसने वो पूछा तो वो सही मतलब मेरा क्लियर हो चुका था एग्जाम. उसके बाद भी मैंने घर पे बताया कि मैं डिटेन हो गया. तो फिर मैंने वो शिफ्ट करके अपना बीकॉम पे ट्रांसफर कर लिया था. अब वो अगर मैं वो फैसला नहीं लेता, वो स्टेप नहीं लेता, तो मुझे नहीं पता था आफ्टर 4 इयर्स कि मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा जिसके बाद मैं शायद बेड पे ही रहूंगा या घर पे ही रहूंगा, मेरी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाएगी. तो वो स्टेप मैंने नहीं लिया होता तो मुझे आज ये लिबर्टी नहीं मिलती कि मैं अपनी प्रैक्टिस करके अपना काम कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंटली जी सकता हूँ. तो वो एक स्टेप पहला जो था वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ चेंज करने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था. उसके बाद जब एक्सीडेंट हो गया तो फिर बहुत सारी स्टोरीज ऑब्वियसली पहाड़ में आप लोग जानते हैं 10 कहानियां बनती है. मुझे भी नहीं पता तो ऐसी कहानियां जैसी भी चलती है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ. तो उसके बाद लाइफ बड़ी डिफिकल्ट हो गई थी बिकॉज देयर वाज ऑल नेगेटिविटी अराउंड. इनफैक्ट माय फैमिली मेंबर्स आल्सो थॉट कि इट्स ओनली अ लिविंग बॉडी नाउ, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा. तो मेरे मन पे इतना अजीब सा माहौल बना दिया गया था. बट मुझे पता भी नहीं था कि मैं हाउ बॉडी इज नॉट पैरालाइज्ड. आई थॉट भारी एक्सीडेंट हुआ होगा तो एनेस्थीसिया इतना स्ट्रांग है कि काम नहीं कर रहा है. मुझे आइडिया ही नहीं था. आई वाज टोटली अनकॉन्शियस फॉर द फर्स्ट 6 or 7 months. तो एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने वो बाहर बात कर रहा था मेरे दादी से, मैंने सुन लिया. फिर मैंने रिपोर्ट मांग के पढ़ लिया तो मुझे पता लग गया ओके दिस इज हैपनिंग. तो डॉक्टर से मना किया था मुझे ना बताएं, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा. जब मुझे पता लगा कि अपर बॉडी चलने वाली है, माय माइंड इज वर्किंग, आई कैन स्पीक, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि नीचे की बॉडी नहीं चल रही. अब लोग कहते हैं कि आपके मन में ये ऐसा क्यों है, आपको झटका क्यों नहीं लगा. वो झटका इसलिए लगा कि उससे पहले जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हुए थे, जो चीजें मुझे लगती थी इम्पॉसिबल है वो ओवरकम मैं कर चुका था. तो वो स्ट्रेंथ मुझे मिल गई थी.
और वो स्ट्रेंथ किताबों से तो ठीक है, आपको नॉलेज मिलती है, जैसे और सब लोगों ने भी बताया। जब तक आप लाइफ में ग्राउंड में उतर के एक्सपीरियंसेस नहीं करेंगे, अपने चैलेंजेस को ओवरकम नहीं करेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। बहुत बच्चे कभी हम जब करियर काउंसलिंग भी करते हैं तो दे आस्क मी कि हमारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। अब कॉन्फिडेंस घर बैठे बैठे इट्स नॉट अ फील कि आज फैलो और कॉन्फिडेंस आएगा। उसके लिए यू हैव टू गो ऑन द ग्राउंड, आपको वहां पर उतरना पड़ता है, काम करना पड़ता है, फेलियर्स भी होते हैं। वहां से आप जब ओवरकम करते हैं किसी एक चीज को जो आपको लगती थी मैं नहीं कर सकता, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है। तो मैं मानता हूँ ऊपर वाले की देन भी ने मुझे प्रिपेयर किया हुआ था कि एक्सीडेंट होगा तो आई हैंडल इट वेरी स्मूथली। तो उसके बाद वो सिचुएशन पूरी नेगेटिविटी फिर मैंने बदली, वो सब चीजें चेंज हुई, नाउ थिंग्स आर वेरी गुड। तो ये दो तीन चीजें समराइज करके मैं इतना ही बताना चाहूंगा। सो दिस इज हाउ लाइफ हैज बीन। एंड दो तीन चीजें हमारे किए हैं। हमें एक सीक्रेट बुक हुआ करती थी, द सीक्रेट, आप लोगों ने अगर पढ़ी है या देखी है। इनफैक्ट ओम शांति ओम में शाहरुख खान का एक डायलॉग भी है कि जो भी आप दिल से चाहते हो तो यूनिवर्स कंस्पायर्स टू वो आप तक पहुंचा दे। ये स्टोरीज में सुनने में तो अच्छा लगता है, बट दिस डेफिनेटली वर्क्स। आई हैव सीन इट अपनी लाइफ में, अपने एक्सपीरियंस के साथ। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा वहां बैठ के तो यार कोई भी कुछ भी ऐसे बोल देता है कहानियां, बट ये सच है। आप अगर मैनिफेस्टेशन की पावर पे बिलीव करोगे और अपने साथ कोशिश करके देखोगे तो 1-2 सालों में आपको अपने रिजल्ट दिखने लगेंगे। एंड इम्पॉसिबल इज ऑब्वियसली नथिंग। आप मेन चीज होती है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव और आपका माइंडसेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि वो आप पहले से नहीं करेंगे ना तो आगे जाके सडनली कुछ नहीं होने वाला है। जैसे घड़ा एक बार शेप ले लेता है पूरा, एक साइड उस शेप के बाद फिर उसको और ऊपर से नहीं बनाया जा सकता। हमारी ह्यूमन लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है। आप लोग अभी कॉलेज लाइफ में हैं, इस लाइफ के अंदर ही आप लोग अपना शेप प्रिपेयर करेंगे। इसी एज में मैंने अपना शेप प्रिपेयर किया था, उसके बाद जो इतना बड़ा इशू मेरे साथ हुआ तो मैं इजीली फेस कर पाया। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, इसे वेस्ट मत करिए और एक्सपीरियंसेस लीजिए, कॉलेज से हेल्प लीजिए, फ्रेंड से हेल्प लीजिए। उत्तराखंड और आई थिंक ओवरऑल इंडिया में ही अब तो इतना मिलजुल के चीजें हो जाती हैं, आप लोगों को जो भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी वो इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करिए टू द बेस्ट जो आप कर सकते हैं। और करियर का तो देखिए ऐसा होता है कि हमें एंड तक भी पता नहीं होता कि क्या हमारा डायरेक्शन। मुझे अभी भी नहीं पता है, मे बी 10 साल बाद इसके बाद मैं कुछ और कर लूँ या कुछ और अपॉर्चुनिटीज आ जाए। तो वो एक सेटअप सोच के बस एक यही प्लान है और इसी के पीछे लगे रहे। बहुत सारे लोग इस पर टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो जो भी आप लोगों का पैशन है, बस आप लोगों को एक क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है। गजनी मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें वो एक सीडान से एक बंदा उतरता है और उसके पास एक सेक्रेटरी होता है, वो थोड़ा सा अच्छा ड्रेस्ड होता है। तो वो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार कभी हमारे मैं भी कभी ऐसा कुछ करूं। अब साइंस में था, मुझे नहीं पता था कि क्या ऑप्शंस होते हैं। डीयू में घूम रहा था, उसके बाद फिर जब थोड़ा सा सीए के बारे में ये सब पता लगा क्या होता है कैसा होता है, तब मुझे समझ में आया कि हाँ चलो वो आमिर खान वाला सीन आई कैन ऑल्सो लेता है। तो इस वजह से मेरा करियर यहाँ हो गया। ऑब्वियसली फिर जब आप करियर के अंदर घुस जाते हो, आप जब फर्स्ट स्टेप ले लेते हो, देन आपको रियलाइज होता है कि करियर है क्या एग्जैक्टली, उसको किस तरीके से जीना है, क्या करना होता है, व्हाट विल बी योर रिस्पांसिबिलिटीज। बहुत लोगों को लगता है कि करियर कंप्लीट करने के बाद लाइफ बहुत आसान है, बट लाइफ उसके बाद ही स्टार्ट होती है। आप एक बार अपना जो भी एजुकेशन है वो पूरा कर लेते हो, आपका असली लाइफ तो उसके बाद ही स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से ही मतलब आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस क्लियर करके अपना माइंड स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चलना होगा। बाकी लाइफ हैज एंडलेस पॉसिबिलिटीज and I wish you all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you, Mr. Gaurav. Highly inspirational words, and I hope that students they learn something from all of you. Today they have come back from their Diwali holidays, and what a day for all of us that we got to meet all of you. And the way you told us your stories, all three of you, and now thank you that you came here. So the way you told your stories to our students, like highly inspirational. And of course we learn, all of us, we learn some lessons from these stories, and maybe we have that capability, all our students, they have that capability, and they can go on and take some risk. I hope that. And thank you once again. Thank you on behalf of Devbhoomi Uttarakhand University that you came here and gave your time to all of us. So I would request all the students and the faculty members to please stand up and thank our guests for this huge